Okay, so Miss Avantika, again we'll try to understand this topic. See, in this topic, the confusion that I used to face was one was this confusion that what is this normal reaction? What is this normal reaction? So we'll try to understand what is a normal reaction. Normal reaction. We had discussed this last time, but we'll try to understand this again. Now, the first would be the normal reaction. The second would be this breaking of this force into two components. One is the F cos theta, other is the F sin theta. So this at times this becomes difficult to understand. Now, the two examples that I have taken now, they are in the horizontal plane. But then there is a second level of abstraction where what we do is we take that block and put it on an inclined plane. So this is what is called an inclined plane. Now, if you see again, what will happen is that there will be this normal reaction. There will be previously there was an external force, but now what is happening is there is no external force, but the weight has to be resolved into components. So if you see the weight is being resolved into two components, mg cos alpha, mg sin alpha. So at times students are not able to understand this. How does this resolution takes place? Uh, in this case, the object is on an inclined plane. There is a weight, but there is a force with which the block is being pushed up the inclined plane. Mr. Vantika, is it making sense? Yeah. So what I'm trying to tell you is that these are different cases, and we should be able to understand first and then draw independently the forces. In this case, the block is on an inclined plane. It has a weight. It has a reaction. Now there is an external force which is pulling the block down. Am I making sense? Yeah. Now there is another level. The next level in these inclined problem is where this inclined surface would be rough. So for example, in this case and the above case, this case, the surface is smooth. When the surface is smooth, there is no friction. There is no friction. But there would be cases that we'll be doing in the next chapter when this inclined surface would be rough and therefore there would be friction. The frictional, due to friction, there would be a frictional force. There would be a frictional force. And then when we draw such diagrams, we'll have to put a frictional force also in the diagrams. Am I making sense? Yeah. So basically what I'm trying to tell you is कि अभी जो diagrams आपके पास हैं, there is a reaction. There is a weight. The weight is being written as mg. There is an external force which is being written by F. This is the external force. What I'm trying to tell you is that in the next chapter, there would be something called a frictional force. Frictional force, which the symbol that we will be using is this. So this force F would also be drawn in this diagram. Am I making sense till here? Yeah. Okay. And the next kind of diagram that we will try to understand is the free body diagram that we will try to understand is this. These two blocks are touching each other and there is a force which is applied. We have to calculate the acceleration due to this force on the two masses m1 and m2. Am I making sense? Yeah. Again, what you see is that the surface is smooth. The surface is smooth. If the surface is rough, then there would be a frictional force which we will have to add. Am I making sense? Yeah. तो अभी सिंपल केस ले रहे हैं एंड आई थिंक बाय ट्यूसडे नेक्स्ट वीक विल हैव कॉम्प्लिकेटेड cases जहां फ्रिक्शन डिस्कस करने के बाद विल हैव फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो नाउ इफ यू सी दीस टू ब्लॉक्स and if you see these two blocks the difference is that these two blocks they are touching each other but then these two blocks there is a thread and the force is being applied like this. Am I making sense? Yeah. Now due to this thread there is another kind of force which is added. That force is called force of tension. Am I making sense? Tension. What you need to understand is that in simple cases, this thread
is massless. So what you assume is that the weight of the thread of the or the weight of the rope is zero. Am I making sense? Yeah. Okay. Then there would be another case. This is what this is one of the favorite topics in a mechanics in physics. This is a smooth pulley. So previously there were smooth surfaces, and now we have smooth pulley. So smooth pulley implies that there is no frictional force. But in this case, there would be this thread which will be attached to these two blocks, and this thread would be massless. Am I making sense? Yeah. See why I am repeatedly saying that it is a massless thread? Because there are complicated cases where this thread has a mass. And when the thread has a mass, then this tension force begins to differ. But we are not discussing that now. Am I making sense till here? Yeah. And then I think this is the final diagram that we will understand. Yeah, this is the final diagram that we will understand, where it is basically a mixture of movement of a block on a frictionless table, and there is a pulley which is being attached. Am I making sense? Yeah. तो फाइनली आज के लेक्चर में दिस वुड बी द मतलब यहाँ लेक्चर खत्म होगा. दिस वुड बी द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ इफ यू सी जितने भी राक्षस हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे. हाँ. सारे के सारे राक्षस इकट्ठे हो जाएंगे. सो यू हैव अ नॉर्मल फोर्स, you have a tension. Yeah, you have a normal force, you have a tension. There are two weights, क्योंकि ये ब्लॉक का वेट अलग है, ये ब्लॉक का वेट अलग है. एंड इफ आई वांट टू increase the complexity of the problem, then what I'll do is कि I will introduce a frictional force also. वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जैसे भी मूवमेंट होती है, या तो वो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड पर लग सकती है या वो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लग सकती है. आर यू गेटिंग द ड्रिफ्ट? Yeah. तो जो कॉम्पिटिशन्स हैं, आप जेई और ये सब के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें ये जो है ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है और बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है. आर यू हेयर विद मी टिल हेयर? Yeah. तो कुछ एक दो चीजें बिफोर वी स्टार्ट वी हैड डिस्कस लास्ट टाइम आल्सो, एंड जस्ट आई क्विकली समराइज व्हाट वी हैड डन लास्ट टाइम. ये जो ब्लॉक है इट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स W which is equal to the weight of this block on this table. Am I making sense? Yeah. So you are sitting on a chair. Let us assume you are standing on the chair. तो वो चेयर पे आप you are exerting a force which is equal to the weight. So of course जो टेबल है वो भी आप पे एक रिएक्शन फोर्स देगा. So this R is the reaction force. Am I making sense? Yeah. What you need to understand is इसमें रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि इन अ इंक्लाइंड सरफेस आपका जो ब्लॉक है वो ऐसे होगा. तो जो रिएक्शन फोर्स है दैट विल बी परपेंडिकुलर. इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? Yeah. तो ये जो रिएक्शन फोर्स है ये परपेंडिकुलर होगा, बट जो वेट है वो ऐसे नीचे होगा. एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. ये वाली फिगर ड्रॉ कर लीजिए. ये वाली फिगर प्लीज ड्रॉ कर लीजिए. प्लीज ड्रॉ. देयर व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहां पर जो रिएक्शन लग रहा था, यहां पर ये जो रिएक्शन लग रहा था इट वॉज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. बट दिस परपेंडिकुलर टू द सर्फेस का जो रिएक्शन था दैट वॉज बीइंग बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द बॉडी. इस केस में नेक्स्ट केस में जो रिएक्शन है ऑफ द सर्फेस ऑन द ब्लॉक is in a different direction from the weight of the block. Am I making sense? Yeah. Have you drawn this? Yeah. Okay. Now I'll just quickly summarize breaking a vector into its component. पहले भी हमने किया हुआ है. Always remember कि अगर ये एंगल थीटा बनेगा तो वेक्टर और थीटा वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा एफ कॉस थीटा होता है, और दूसरी साइड पे जो वेक्टर बनता है वो हमेशा एफ साइन थीटा बनता है. एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. अब ये जो वेक्टर है बनता है दैट यू नीड टू रिमेंबर, ये जो वेक्टर है यार हम वेट भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, ये वेट हो सकता है,
ये एक्सेलरेशन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है. सो यू कैन टेक एनी वेक्टर एंड यू कैन ब्रेक इट इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. अभी देखिए, इस केस में देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन आइदर एक्स और वाई एक्सिस. इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन फोर्स है, ये वेट है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगी. एम आई मेकिंग सेंस? वाई? बिकॉज रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू वेट. एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. We can also write this result as sigma f is equal to, if sigma f is equal to ma, then sigma f is equal to 0. When I am writing this, basically what I am saying is that reaction minus w is equal to 0. Why this 0? Because this acceleration is 0. Am I making sense or not? Yep. So when I write sigma f, what does it mean? It means कि जितनी भी फोर्सेस उस ब्लॉक पे लग रही हैं, आप उनको ऐड कर लीजिए. एडिशन करके जो नेट इफेक्ट है वो जीरो. एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. यू कैन ऑल्सो आस्क मी कि ये नेगेटिव क्यों है. ये नेगेटिव इसलिए है बिकॉज अगर मेरा एक्सेस ऐसा है जिसमें ये मेरा वाई एक्सेस है और ये मेरा एक्स एक्सेस है, तो मेरी अप जो है वो पॉजिटिव है और मेरा डाउन जो है वो नेगेटिव है. इसलिए ये वाली जो फोर्स है वो यहाँ पर नेगेटिव है. एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? Yeah. सी ये सिंपल केसेस आप समझेंगे तभी कॉम्प्लिकेटेड समझ आएगा. अगर यहीं पर फिसल जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ आएगा. आर वी क्लियर टिल हियर? Yeah. अब हमेशा ऐसा केस तो नहीं होगा. आई कैन हैव अ केस वेयर आई एम applying a force, external force like this. Am I making sense? Yeah. अब वाई एक्सिस में तो कोई मूवमेंट नहीं है, बट ये जो फोर्स लग रही है, अगर इफ दिस फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस, अगर ये सरफेस के पैरेलल है, इसको कोई अपोज करने वाला तो है नहीं. क्योंकि इसको अपोज करने वाला नहीं है, तो अगर आप एक्स एक्सिस में देखेंगे तो जो सिग्मा एफ है दैट इज एफ, एंड बिकॉज इट इज अ नेट फोर्स, इट विल प्रोड्यूस सम एक्सेलरेशन विच विल बी गिवन बाय ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम. एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? Yeah. बट अगेन आई level up the abstraction level. Let me say that there is a frictional force जो कि आपकी फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर रही है. एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. इफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स is equal to your force, again the sigma f would be f minus f, and this would be zero. There would be no net acceleration. Am I making sense? Yeah. अरे भाई, कई बार ऐसा होता है ना कि देर इज अ ओके, लेट अस अज्यूम लिविंग रूम में टेबल पड़ा हुआ है. वो जो लिविंग रूम में टेबल पड़ा हुआ है, यू ट्राई टू पुश दैट बट इट डजेंट मूव. इट इम्प्लाइज कि आप जो फोर्स लगा रहे हो और जो फ्रिक्शनल फोर्स है दे आर इक्वल टू ईच अदर, एंड दैट इज वाई यू आर नॉट एबल टू पुश दैट टेबल. एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? Yeah. लेट अस टेक द सेकंड केस. तो अगर आपको ये समझ आ गया तो लेट अस टेक द सेकंड केस, जिसमें आई टेक दिस ब्लॉक, आई पुट दिस ब्लॉक on an inclined plane which is at an angle theta. Am I making sense? Yeah. Now, another thing that you need to always understand in physics is कि if, always remember this, if between two lines there is an angle theta, तो ये दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर इफ यू ड्रॉ टू लाइंस, the angle between these two perpendicular lines will again be theta. Am I making sense? Yes. Should I repeat? Yeah. ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है. Am I making sense? Yeah. Now I'll draw two lines which are perpendicular to the initial lines. Am I making sense? ये दो Yeah. न्यू ये दो न्यू लाइंस के बीच में भी जो एंगल होगा वो थीटा होगा. एम आई मेकिंग सेंस? Yeah. सो हाउ कैन आई यूज दिस? ये
सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये वेट होगा, एम आई मेकिंग सेंस? yes, ये रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, कैन यू सी दिस? yes, सो इसमें और इसमें अगर एंगल थीटा है, तो इसमें और इसमें जो एंगल है दैट विल बी थीटा, एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? yes, I'll redraw and I'll explain again. ये एंगल थीटा, यू हैव पुट अ ब्लॉक हियर, एम आई मेकिंग सेंस? अब yes, ये वेट है, ये वेट है, ये जो वेट है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, एम आई मेकिंग सेंस? yes, ये जो रिएक्शन है, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, एम आई मेकिंग सेंस? yes, तो इसके और इसके बीच में एंगल ये है, इसलिए इसके और इसके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी थीटा, एम आई मेकिंग सेंस? yes, एंड व्हाई डू आई नीड दिस? आई नीड दिस बिकॉज what I'm going to do is I'm going to I'm going to break this W vector. How will I break this W vector? This is angle theta. So this component would be W cos theta and this component would be W sin theta. Am I making sense? yes, And why am I doing this? I am doing this because ये जो W cos theta, this will balance this reaction. Am I making sense? yeah, तो ये जो रिएक्शन है दैट विल बी बैलेंस्ड बाय W cos theta. But if you look closely, this W sin theta is not being balanced by anything. इसके ये बाजू कोई फोर्स नहीं है. Am I making sense? yes, And that is why this W sin theta will give rise to this acceleration ma. Am I making sense? yes, तो अगर मैं अपना जो डायरेक्शन एक्सिस है वो ऐसे ड्रॉ करता हूँ कि दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, सो वाई एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज अगर आप वाई एक्सिस का सिग्मा एफ देखोगे, तो वाई एक्सिस का सिग्मा एफ है आर माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा, एंड बिकॉज दे बैलेंस ईच अदर देयरफॉर दिस इज जीरो. एम आई मेकिंग सेंस? yes, बट इफ यू सी द दिस इज द दिस इज द वाई एक्सिस, इफ यू सी द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्स मतलब ये वाली डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में जो डब्ल्यू साइन थीटा है दैट इज गिवन गिविंग राइज टू दिस एक्सेलरेशन ए. So A will be given by W sin theta upon M. Am I making sense? yes, Let me take another example जिसमें what I'll do is ये ब्लॉक है. Now you draw, you can keep noting what I'm drawing, and then you balance in x axis and y axis. Am I making sense? आप कॉपी कर लीजिए जो भी मैं कर रहा हूँ, okay, और आपको अब बैलेंस लिखना है. सो पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए, मैं आपको प्रॉब्लम समझाऊंगा. सो दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस. मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, डोंट वरी. पहले जो मैं बना रहा हूँ उसको कॉपी कर लीजिए. कॉपी कर लीजिए जो मैं बना रहा हूँ. तो आई एक्सप्लेन.
आप कॉपी करते रहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा। देखिए, फर्स्ट केस में, दिस इज केस वन में आप क्या कर रहे हैं, आपने जो ब्लॉक है वो स्मूथ सरफेस पे रखा। तो देर इज अ वेट डब्ल्यू विच इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि मैं नीचे की तरफ उसको पुश कर रहा हूँ ब्लॉक को। और ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो रिएक्शन फोर्स है वो फिर से आर है। दिस आर इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। दिस इज केस 1। केस 2 में क्या हो रहा है, आई हैव दिस ब्लॉक, वो ब्लॉक का वेट है जो कि नीचे की तरफ लगा हुआ है। देर इज अ रिएक्शन जो कि ऊपर की तरफ है, एंड आई एम नाउ पुशिंग द फोर्स, आई एम पुशिंग द ब्लॉक अप विद द फोर्स एफ। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ तो आपको क्या करना है दोनों केसेस के लिए, व्हाट यूल हैव टू डू इज यूल हैव टू राइट, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, वाई एक्सिस में ये मैंने बैलेंस लिखा, और उसके बाद मैंने एक्स एक्सिस में ऐसा एक बैलेंस लिखा। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ तो आपको वाई एक्सिस का और एक्स एक्सिस का बैलेंस लिखना है। एम आई मेकिंग सेंस? या So I'm closing this meeting and I'll restart in the next 5 minutes. Yeah? ओके सर Yeah. So Vantika, in case one, what will start happening is that this is the weight component. This is the normal reaction. Now I'll spend few minutes to explain this axis. So this is the axis that we are carrying with us. This is the x-axis. This is the y-axis. So what this implies is that this direction is positive, this direction is negative, this direction is positive, and this direction is negative. Am I making sense? या And we can take another interesting case where I have drawn the frame of, basically this is called the frame of reference. So in case 2, I have drawn the frame of reference like this, that this is my y axis and this is my x axis. Am I making sense? या So फ्रेम ऑफ रेफरेंस अवंतिका आप जैसा चाहते हैं वो वैसा बना सकते हैं। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं, सो दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, यू कैन मेक इट लाइक दिस। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे बनाना चाहते हैं जिसमें कि दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, यू कैन जैसे भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। द ओनली थिंग इज दैट दिस शुड बी 90 डिग्री। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? या बट वो डिफाइन करना जरूरी है। वो डिफाइन करना क्यों जरूरी है? बिकॉज इन अ वे व्हाट यू आर सेइंग इज कि ये साइड के जो वेक्टर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, बट ये साइड के जो वेक्टर्स हैं वो नेगेटिव होंगे। ये साइड के जो वेक्टर्स हैं ये पॉजिटिव होंगे, और ये साइड के जो नेगेटिव वेक्टर्स हैं वो नेगेटिव होंगे। एम आई मेकिंग सेंस? या व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि आपकी जो बेस इक्वेशन है, आपकी बेसिकली देयर इज अ मदर इक्वेशन दैट यू आर डीलिंग विद, एंड दैट इज सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए। हेयर जो नेट फोर्स है और ये जो एक्सेलरेशन है, सो दिस इज अ वेक्टर एंड दिस ऑल्सो इज अ वेक्टर। एम आई मेकिंग सेंस? या तो ये जो वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है, वो जो डायरेक्शन है वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिसाइड होगी। एम आई मेकिंग सेंस और आई एम कंफ्यूजिंग द इश्यूज? नहीं समझ पा रहे हैं विल टेक एग्जांपल्स, डोंट वरी। अभी जैसे हम एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। सो आपको, बट पहले आपको स्टेट कर देना है, आपको साइड में ड्रॉ करना है कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हमेशा। उसके बिना नहीं करना, अदरवाइज यू विल गेट, यू योरसेल्फ गेट कंफ्यूज्ड। तो फॉर एग्जांपल इस केस में लेट अस रिजॉल्व इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में अगर आप रिजॉल्व करेंगे, सो दिस इज द फोर्स एफ। अब ये वाला जो डब्ल्यू है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये कंपोनेंट है विच इज डब्ल्यू कॉस थीटा, और इसका एक दूसरा कंपोनेंट है विच इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। एम आई मेकिंग सेंस समझ? हाँ तो एक्स एक्सिस में बेसिकली दो वेक्टर्स लगे हुए हैं। एक तो आपका जो फोर्स है, मतलब एफ जो है, वो तो एक्सटर्नल फोर्स है जो आप अप्लाई कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स, और ये जो है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये डब्ल्यू साइन थीटा, ये वेट का कंपोनेंट है। एम आई मेकिंग सेंस? या एंड बिकॉज दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन दे विल बी एडेड, सो एफ प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। एम आई मेकिंग सेंस? तो आपका जो सिग्मा एफ है दैट इज इक्वल टू एफ प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? हाँ आपकी मदर इक्वेशन है सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये किसके इक्वल होगा? एम ए। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? यस तो आपकी जो एक्सेलरेशन विच विल बी कॉज्ड इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने वाली है, एंड दैट एक्सेलरेशन, उसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी एफ प्लस डब्ल्यू साइन थीटा होल अपॉन एम।
हैव आई एक्सप्लेन्ड दिस वेल और हैव आई कंफ्यूज्ड यू? नहीं, एक्सप्लेन वेल। तो ये एक्स एक्सिस है यार, बट इसके साइड में अभी भी जो वेट कर रहा है वो वाई एक्सिस वेट कर रहा है, वाई एक्सिस। अगर आप वाई एक्सिस देखेंगे तो ये मेरी, ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव डायरेक्शन में द नॉर्मल रिएक्शन इज अपोज्ड बाय डब्ल्यू कॉस थीटा। बट आपको पता है कि द ब्लॉक नेवर लीव्स द सरफेस ऑफ द इंक्लाइंड implies that there is no movement in the y axis, and that is why this is zero. This is another way of saying that the reaction is balanced by w cos theta. Am I making sense? यस। तो ये जो y axis है इसको आप, there are two ways of seeing this. One way of seeing this is that r minus w cos theta, r minus w cos theta is equal to zero, which we get from sigma f is equal to ma. But there is another way of seeing this, that this r is balanced by this w cos theta. Am I making sense or not? हाँ, समझ रहा हूँ। देखिए, दो डायरेक्शंस हैं आपकी, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। आपको जो एक्सेलरेशन है वो दोनों साइड में देखनी है कि भाई एक्स में क्या एक्सेलरेशन हो रही है और वाई में क्या एक्सेलरेशन हो रही है। एम आई मेकिंग सेंस? यस। अब अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे, अगर आप ये वाला केस टू देखेंगे, तो केस टू में क्या हो रहा है? अब जो फोर्स है, जो आपकी फोर्स है, वो इट इज इन दिस डायरेक्शन, एंड प्लीज सी दैट ये वाली साइड जो है आपने पॉजिटिव ली हुई है। एम आई मेकिंग सेंस? वेट नीचे साइड हाँ। है, वेट नीचे की साइड, जो रिएक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये तीनों फोर्सेस लग रही हैं, और ये तीनों फोर्सेस एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हम रिजॉल्व करने वाले हैं। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? यस। पहले एक्स एक्सिस देख लीजिए, ये साइड में, आप ये साइड में आपका जो एक्स है वो पॉजिटिव है। ये जो डब्ल्यू है इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा, एक तो ये ब्रेक होगा, दिस विल बी डब्ल्यू कॉस थीटा, और एक ये ब्रेक होगा, दिस विल बी डब्ल्यू साइन थीटा। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? यस। भाई शिवांग, कुछ ठीक है गलत है? अरे दोनों सोए हुए हो भाई। याद रखिए, इफ दिस इज एफ एंड दिस इज थीटा, सो दिस कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज एफ साइन थीटा। एम आई मेकिंग सेंस? सोए हुए दोनों। तो ये जो मैंने रिजॉल्व किया है ये मैंने गलत रिजॉल्व किया है। इस केस में जो थीटा वाला पार्ट होगा वो डब्ल्यू कॉस थीटा होगा, और ये वाला जो पार्ट है ये डब्ल्यू साइन थीटा होगा। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट मिस अवंतिका? हाँ, नोटिस्ड। भाई ये डब्ल्यू है, ये थीटा है, तो डब्ल्यू और थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो डब्ल्यू कॉस थीटा होगा, और अपोजिट वाला जो है ये, हाँ, वो हमेशा कॉस थीटा होगा, और उसके अपोजिट साइड में जो कंपोनेंट है वो हमेशा साइन थीटा होगा। नहीं समझ में आया? हाँ, समझा। ये जो कंपोनेंट है ना ये कॉस थीटा होगा, ये जो है वो साइन थीटा। समझ आया? तो एक्स एक्सिस में बैलेंस देखिए, एक्स एक्सिस में बैलेंस देखिए, हमारी एक्स एक्सिस ये है, हमारी ये वाली जो साइड है ये पॉजिटिव है, तो एफ, ये पॉजिटिव एफ है, इट इज अपोज्ड बाय दिस साइन थीटा माइनस डब्ल्यू साइन थीटा। दिस वुड बी, so sigma f is equal to ma, so this would be equal to ma. Am I making sense? हाँ। ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस में मैं ऊपर वाली जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव माना, तो r minus w would be equal to ma, but because there is no movement in the vertical direction, so this is zero. This is another way of saying that r is equal to w. Am I making sense? हाँ। तो अब इस केस में द इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व इज, एंड दैट इज व्हाई द डायरेक्शन शुड बी वेरी क्लियरली डिफाइंड। व्हाट यू शुड बी वेरी क्लियर इज, अगर आपका एफ जो है दैट इज मोर देन डब्ल्यू साइन थीटा, तो आपकी जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ। बट अगर आपका जो एफ है, ऐसे लिख देते हैं, इफ योर एफ इज मोर देन डब्ल्यू साइन थीटा, सो एक्सेलरेशन वुड बी पॉजिटिव। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन किस साइड होगी? ये साइड पे होगी। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ। बट अगर आपका जो फोर्स है दैट इज लेस देन डब्ल्यू साइन थीटा, तो आपका ये जो कंपोनेंट है दिस विल बी नेगेटिव, विच इन अ वे सेज दैट ए इज नेगेटिव,
विच इन अ वे सेज कि ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा. एम आई मेकिंग सेंस? Yes. So once you start understanding this topic will become very interesting. जब तक जब तक नहीं समझ आ रहा तब तक मुश्किल है. सो देर इज वन केस विच वी स्किप्ड, बट अभी उसको देख लीजिए. सो एक्चुअली दिस वॉज अ सिंपलर केस, मैंने वो स्किप कर दिया. तो लेट मी कम टू द सिंपलर केस फर्स्ट. ये डब्ल्यू है और ये नॉर्मल रिएक्शन है. एम आई मेकिंग सेंस? एंड देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग. एम आई मेकिंग सेंस? बंद का Yes. स्मूथ सरफेस है. स्मूथ सरफेस है. तो स्मूथ सरफेस में इस केस में जो ब्लॉक है भाई सीबी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वैसे का वैसा रहेगा. जो सरफेस है वो बेटा क्या है? स्मूथ है. जाएगा ना नीचे की तरफ जाएगा. अगर फ्रिक्शन है, अगर रफ है, तो वही स्टैटिक भी रह सकता है. हाँ हाँ, बहुत वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. सो बताइए व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कि देयर आर टू केसेस विच आर पॉसिबल. एक तो केस ये है कि अगर द सरफेस इज स्मूथ तो डेफिनेटली ये नीचे की तरफ आएगा. एम आई मेकिंग सेंस? हाँ. बट अगर ये रफ सरफेस है, अगर ये रफ सरफेस है, देन यू विल हैव सम केसेस जिसमें कि अगर थीटा छोटा है तब तो स्टैटिक है. बट जैसे जैसे अवंतिका आप थीटा को बड़ा करोगे तो देर विल कम अ थीटा जहाँ ये नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू करेगा. एम आई मेकिंग सेंस? Yes. इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन हाउ डज इट लुक लाइक? ये वाला केस तो जब हम फ्रिक्शन करेंगे तो करेंगे, बट अभी ये वाला केस देखिए कि इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन हाउ ब्यूटीफुली व्हेन यू लुक एट द इक्वेशन इट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस. तो देखिए डोपामिन जवान डोपामिन. आई एम पुलिंग अ हुबरमैन ऑन यू. सो दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज द वाई डायरेक्शन. मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस अवंतिका डिफाइन कर दिया. आपको हमेशा डिफाइन करना है, बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही आपके जो वेक्टर्स हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे. एम आई मेकिंग सेंस? मिस Yes. अवंतिका एम आई या? तो ये ध्यान रखना है यार, इसमें गलती नहीं करनी. फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा डिफाइन करना है. अब देखिए रेजोल्यूशन देखिए. ये डब्ल्यू वेट है. बोलो बेटा सिमा, ये कंपोनेंट क्या होगा और ये कंपोनेंट क्या होगा? मिस अवंतिका डू वी कॉन्कर विद मिस्टर सिमा? उसको पता है तो क्या बोल रहा है. Yes. तो अभी आप अगर आप देखेंगे फिर से, अगर मैं वाई एक्सिस में रेजोल्यूशन करूंगा तो देखिए याद रखिए ये आपकी अवंतिका ये आपकी मदर इक्वेशन है दैट सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए. एम आई मेकिंग सेंस? Yes. आई एम स्किपिंग lot of steps here. So for example, when we will be doing circular motion, the equation that we will be doing is sigma f is equal to m v square by r. So ये लीनियर मोशन के लिए होता है. सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर होता है. तो सर्कुलर मोशन जब हम करेंगे तो सेम मदर इक्वेशन रहेगी. बट इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी फोर्सेस सर्कुलर मोशन कराएंगी. अभी समझ नहीं आएगा, जब करेंगे तो समझ आ जाएगा. बट जब हम सर्कुलर मोशन करेंगे तो ये जो मदर इक्वेशन है इस मदर इक्वेशन की एक अनदर फॉर्म है विच इज सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. दिस इज व्हाट विल बी यूजिंग. अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है, मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया तो जब रोटेशनल मोशन करेंगे तो इसके बारे में भी बात करेंगे. तो एनीवेज एक्स एक्सिस में, ये वाली एक्सिस में ये डब्ल्यू साइन थीटा. एक्स एक्सिस में कोई ना तो इस साइड पे फोर्स है ना इस साइड पे फोर्स है. सो द ओनली फोर्स इज डब्ल्यू साइन थीटा एंड दिस विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सेलरेशन. एम आई मेकिंग सेंस? Yes. और ये ए जो है वो डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन एम. एम आई मेकिंग सेंस? हाँ. और डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो एम जी के इक्वल है. एम आई मेकिंग सेंस? हाँ. तो जो ए है वो किसके इक्वल है? जी साइन थीटा. एम आई मेकिंग सेंस? Yes. एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल इक्वेशन. वाई? बिकॉज वॉट इट सेज इज कि आपका थीटा जितना ज्यादा होगा आपकी एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा होगी. एंड विच वी नो इज ट्रू कि आपका जो इंक्लाइन प्लेन जितना ज्यादा कर लेंगे तो आपकी जो उतनी ही स्पीड से जो ब्लॉक है वो नीचे गिरेगा. भाई वेट जो है वो एम जी के इक्वल होता है ना. वेट, हाँ सर इतना तो करोगे ना, अभी तो ट्वेल्थ में आ जाओगे. यहाँ एम जी आ गया, ये एम कैंसिल हो गया तो जी साइन थीटा आ गया. तो पूरे टेंथ मुझे लगता है स्किप कर दी बेटा तूने. दिस वन थिंग. एम आई मेकिंग सेंस? Yes. आगे दे हैव कम.
And if we see the, so this was the balance in the x-axis, sorry, this was the balance in the x-axis. And if we see the balance in the y-axis, अगर आप y-axis देखेंगे, so R is balanced by W cos theta. Another way of writing this is that W minus W cos theta is equal to 0. This R minus W is sigma F in the y-axis. Am I making sense of it? Yeah. So अभी तक what we have done is, I'll show you the what we have covered till now. ये बेसिक केस हमने कर लिया, ये एट एन एंगल हमने कर लिया, आप उसको पुल कर रहे हो पुश कर रहे हो, इंक्लाइंड सरफेस पे हमने कर लिया विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, इंक्लाइंड सरफेस पे कर लिया विद सम एक्सटर्नल फोर्स. एम आई मेकिंग सेंस? यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ये सारे केसेस हमने कर लिए. आई थिंक we'll do the rest of the cases tomorrow. ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाले पुली वाले केसेस कल करेंगे. And tomorrow will do some numericals also, and I'll give you a worksheet. This way you'll have to do the questions. Something, is it okay? Yeah. So let's meet tomorrow at 12. I'm closing the meeting. Yeah. Okay.